Good morning, class 11. So, chemical bonding and molecular structure we are discussing. So, as we are discussing in this, the topic that is hybridization, right? We are giving stress on this concept hybridization. So, the next thing which I am going to discuss with you, that is sp3 hybridization. Okay. This is not working, I will use another pen. So the next thing which I am going to discuss with you, sp3 hybridization. Hope so you have solved the examples which I have given in the yesterday's video. So the next thing, sp3 hybridization. In case of sp3 hybridization, what is there? It is already clear from the name. कितने s होंगे? 1s and 3p. एक एस और 3p जो ऑर्बिटल जब मिक्सअप होंगे देन दे हाइब्रिड एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? सो हियर आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल दैट इज ऑफ कार्बन. ओके, सो बट कार्बन के किस कंपाउंड की मैं एग्जांपल लूँगी यहाँ पे आपके साथ, दैट इज ऑफ मीथेन CH4. ओके, so here I am going to take the example of CH4. आपको याद होगा when we have started with the hybridization, then also we have discussed about CH4. So the same thing I am going to start. Okay. So यहाँ पे होगा क्या, अभी पहले हम कार्बन की क्या करेंगे, जैसे आप करते आए हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है, यू विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन. Okay, G dot S, that means ground state electronic configuration, that is 1s2 2s2 2p2, right? So according to this the orbital picture will be like, मैं इधर बना रही हूँ ताकि ये स्पेस बच जाए. आई हैव टू डिस्कस लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? सो यहाँ पे देखिए, सो वी विल हैव आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, 2s और 2p. सो आई एम जस्ट मेकिंग दैट वन, 2s with 2 electron, this is the 2p. Okay, with one electron in each orbital. This is 2s, this is 2p. This is carbon ground state. यही है ना carbon ground state. So what will happen now? क्या होगा? The electron from the 2s, as you know, ये चीज़ हमने पहले भी बात की है. So carbon here have to make 4 bonds, right? But carbon is having the availability of 2 electrons only. So what will happen? The electron from the s orbital that get excited, the electron from the s orbital that get excited to the p orbital, right? So electron जो है वो s से कहाँ तक जाएगा, p की तरफ जाएगा. So we will have what? We will have excited state electronic configuration. Okay, so the excited state electronic configuration of carbon is 1 1 1 each, 2s 2p. So here you can see easily यहाँ पे क्या हो रहा है, the s orbital having 1 electron, the second electron with opposite spin, that is when gain energy, that will excite it to the next level, the next orbital that is empty. So the next orbital here is the 2p, so electron get excited to the 2p orbital, right? So we are having 4 unpaired electron, one is in 2s, another is in 2p. Okay, 3 are in 2p orbital. So what will happen before forming the bond with the hydrogen, what they will do, they will hybridize. Okay, they will hybridize. Okay, अब जब when they will hybridize, they will have hybridization, that is sp3. Why it is sp3? Because 1s and 3p orbital hybridized mix and result in the formation of new set of orbital, and that's why its name of hybridization is what? sp3 hybridization. Okay, so first of all we will do the mixing of orbital here. So the example which I am going to take here, CH4 हमने ली हुई है, अभी मैं s orbital बनाती हूँ सबसे पहले. Okay, so I am having these 3 axes. So what is there? The s orbital is lying over the axis because हमें पता है all the axes, because this is having no direction. Okay, suppose this is x, y, z. So this is having no direction, this is positive lobe. s orbital is having positive lobe. अब कौन सा s है ये? ओके, 2s है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2s. ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास 2p ऑर्बिटल हैं, तो p ऑर्बिटल जो होंगे वो दैट विल बी हाउ मेनी ऑर्बिटल, प्लस डाल के we'll have the next orbital that I am using here, that is the y orbital. ठीक है, अब देखिए ये है हमारी एक्सिस. ओके, सो द y ऑर्बिटल, ये मैंने बनाया z, ये मैंने बनाया x, तो y पे मैंने एक्सिस नहीं बनाई. आई एम जैसे मेकिंग द
ऑर्बिटल डायरेक्टली. सो दिस इज द वाई ऑर्बिटल 2py. ठीक है, ये हो गया 2py. और फिर मैं बना देती हूँ 2px. ठीक है, सो नेक्स्ट वन विल बी 2px. 2px में ये z होगा, ये y होगा. ठीक है, और ये x होगा. x पे मैं फिर से डायरेक्ट ऑर्बिटल बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, नीट एंड क्लीन. ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगी बेटा, करेक्ट कर लेना. दो लोब्स होती हैं ना p ऑर्बिटल की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो यहाँ पे भी अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूँ स्पिन को, सो ये हो गया नेगेटिव. राइट, सो ये तुम्हारे दो ऑर्बिटल हो गए. कौन से? 2py. अब ये कौन सा है? 2px. अब कौन सा बचा? प्लस. अब थर्ड कौन सा बचा? 2pz. ओके, सो आई विल मेक हियर 2pz हो जाएगा कुछ ऐसे, और ये हो गया हमारा x, और ये हो जाएगा हमारा y. सो दिस इज व्हाट? 2pz. ओके, सो this and this all will merge. Okay, all will mix, they all will mix. That's why the plus sign is there. सबसे पहले सारे mix up होंगे. Okay, they all will mix, and after mixing what will happen? They result in the formation of new set of orbital. Okay, the new set of orbital is like हर किसी की ऑपोजिट लोब बनानी है. ठीक है, मतलब एक भी ऑर्बिटल है ना जो मिक्स होकर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, तो उसकी हर एक की ऑपोजिट लोब बनानी है, चाहे वो फिर ऑर्बिटल के अंदर ही क्यों ना आए. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी. अब देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी लोब्स कौन सी हैं? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. ये होंगी नेगेटिव 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 नेगेटिव. ठीक है जी, तो ये मेरे पास ऑर्बिटल आ गए, मिक्सअप हो गए. अब क्या होंगे? ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे? कौन है हमारे पास सेकंड वन? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 4 ऑर्बिटल होंगे. हाइड्रोजन का आपको पता ही है, हाइड्रोजन इज 1s1. सो हाइड्रोजन का ऐसा ऑर्बिटल होगा, आपको पता है स्फेरिकल होता है s. सो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा. आई विल यूज़ अ डिफरेंट पेन ताकि आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया अभी एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल. ठीक है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन का हो गया. यहाँ मैं लिख देती हूँ H. इसकी अंदर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव. और यहाँ फिर नेक्स्ट आ जाएगा. ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव. नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ भी पॉजिटिव, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी पॉजिटिव. अब मैंने क्या बताया था, कल भी आपको समझाया था, वेन एवर यू आर शोइंग द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल. अब ये बॉन्ड बन गया. सो यहाँ पे शेयर क्या हुए हैं? इलेक्ट्रॉन. तो वो इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं. ठीक है, आई विल यूज़ अ पेंसिल हेयर. ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिख जाए. पेंसिल से ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं. ठीक है बेटा जी, लाइक दिस. अंडरस्टूड है? सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? मीथेन. ये किसका स्ट्रक्चर है? मीथेन का. ठीक है, हाँ, आपको इसको और इलेबोरेट करने के लिए यहाँ सेंटर में कार्बन ज़रूर लिखना. ठीक है, सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है मीथेन का. अब ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये आप पहले भी पढ़ के हैं, वेस्पर में CH4 है. सो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं. वेन एवर देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड. ठीक है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. यही बताया था ना वेस्पर ने, वेन एवर देयर इज अ 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो ज्योमेट्री है, दैट इज विच ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल. and the angle is 109 degree 0.58 minutes. Okay, so this is the angle here. That means in each bond, here, everywhere, the angle is 109.9 degree 0.8 minutes. ठीक है, so this is the hybridization of CH4. ओके, द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस सेम. अभी sp3 ही चल रहा है, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, उनकी बात कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग भी है. सो द नेक्स्ट एग्जांपल विच आई एम गोइंग टू टॉक विद यू, दैट इज़ ऑफ अमोनिया NH3. ओके, पहले NH3 की बात करेंगे, फिर वाटर की बात करेंगे. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम हैविंग, दैट इज़ ऑफ NH3, अमोनिया. ठीक है, अब मैं अमोनिया की बात कर रही हूँ. तो अब सेंट्रल एलिमेंट आपको सामने दिखी गया, कौन सा? नाइट्रोजन. So what you will do, first of all, you will write the electronic configuration of nitrogen. Right, the electronic configuration will be 1s2, 2s2, and what is here? 2p3. ऐसी बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब इसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? 2. वैलेंस शेल कौन सा है? 2. ठीक है, विद द प्रिंसिपल क्वांटम 2 इज द आउटरमोस्ट शेल. एंड इन द आउटरमोस्ट शेल आई विल शो यू द हियर, दिस इज 2s, दिस इज 2p. राइट, सो 2s में कुछ ऐसा होगा, ये बना है ना बेटा जी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट? 2s, दिस इज व्हाट? 2p. अंडरस्टूड?
Now, you know what should be the next step? How many bond it is forming with the hydrogen? 3. So it require how many unpaired electron? 3. It is already available. It is already having 3 unpaired electron. It is already having 3 unpaired electrons. So there, that's why no excitation is required. No excitation is required. So nitrogen ground state is applicable only because it has to form 3 bonds only. So what will happen? But before forming bond, what will happen? The orbital undergo hybridization. Same sp3 hybridization, वही shape बनेगा. But difference कहाँ पे आएगा? देखो, difference is where. Now I am going to make the structure of NH3. Okay, so that it would be more clear to you. Orbitals देखो hybridize हुए. I have got the shapes. कुछ ऐसे ही हमारे पास शेप आई जैसे उसमें आई थी, ठीक है, CH4 में. ओके, बट व्हाट हैपन, द वन ऑर्बिटल, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, सेंटर में. सॉरी, मैं हर बार दिखाना भूल जाती हूँ. सो नाइट्रोजन होगा यहाँ सेंटर में, और यहाँ पे एक जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा होगा, ये वाला, क्योंकि ये शेयर नहीं हुआ. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा पड़ा होगा. द रेस्ट 3 हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, दे गेट ओवरलैप विद हाइड्रोजन. दे गेट ओवरलैप विद हाइड्रोजन. पॉजिटिव लोब, पॉजिटिव लोब, पॉजिटिव लोब, राइट. और ये ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के साथ, और कुछ ऐसे ही होगा. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है. यहाँ पे 3 हो गए कोवलेंट बॉन्ड. एक क्या है? लोन पेयर है. देखो ये लोन पेयर बोलते हैं. एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनयूज्ड पड़ा हो एटम के ऊपर, दैट इज नोन टू बी अ लोन पेयर. सो दिस इज व्हाट? लोन पेयर. नाउ व्हेन इफ आई सी द एंगल हियर, व्हाट शुड बी? अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आपका आंसर होना चाहिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड एंगल इज 109 डिग्री 0.8 मिनट्स. बट दिस इज नॉट सो. ना तो एंगल इतना होता है, ना ज्योमेट्री इतनी होती है, ठीक है. अभी क्या है, आप उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो एंगल होगा बेटा, दैट विल बी लेस. ओके, द एंगल विल बी लेस. व्हाई इट इज लेस? दैट्स अ क्वेश्चन टू यू. व्हाई इट शुड बी लेस? So as I have said to you, that question is on to you. So might be you have thought about it. So angle is here. ये हमने पहले भी किया है, इसीलिए मैंने छोड़ा. The angle is here. That is in actual कितना एंगल हम लेते हैं यहाँ पे? That is 107 डिग्री. 107 डिग्री एंगल होता है. और ज्योमेट्री, that is not tetrahedral. The geometry here is pyramidal. इस ज्योमेट्री को हम पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं. अगर आपने इसको ऐसे बॉन्ड की फॉर्म में दिखाना है, इट विल बी लाइक दिस. बेटा देखना ज़रा ध्यान से. एच एच एच, ओके, दिस इज प्रेजेंट अनयूज्ड. सो दिस इज लोन पेयर. अभी आपको पता है, ये हमें वेस्पर ने बताया. लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन एंड और यहाँ पे 2 ही रिपल्शन हुई, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से एंगल कितना हो गया? 107 डिग्री. और ज्योमेट्री क्या हुई? पिरामिड. ठीक है बेटा जी. सो दिस इज अमोनिया. द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, दैट इज वाटर. दैट इज H2O, वाटर. So for water, the oxygen, that is 1s2, 2s2, 2p4. For water, the oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. Now again the outermost shell कौन सा है oxygen में? The outermost shell for oxygen, that is 2. So मैं यहाँ इसको बनाऊंगी. So here 2s 2p, राइट. सो S में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P में कितने? 4. सो कुछ ऐसा होगा अरेंजमेंट. अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है हाइड्रोजन के साथ? सिर्फ 2. और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन वी आर ऑलरेडी हैविंग. सो ऑक्सीजन ऑल्सो, इन ऑक्सीजन ऑल्सो नो एक्साइटेशन इज रिक्वायर्ड. ये हमने किया था ना, याद है ना, मैंने आपको समझाया था कि इन ईच केस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलेंस बॉन्डिंग, ये बताया था दैट इलेक्ट्रॉन इन ईच केस यू डोंट, देयर इज नो नीड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन. सो हियर वी आर नॉट एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन, जस्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म पेयर अप विद द हाइड्रोजन, राइट. नाउ व्हाट इज देयर? अगेन द क्वेश्चन अराइजेस फॉर द एंगल एंड द ज्योमेट्री. ओके, नाउ अगेन पहले तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ sp3. यहाँ ज़रूर लिखना है हाइब्रिडाइजेशन. ओके, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन.
अंडरस्टूड. व्हेन आई विल मेक द ज्योमेट्री ऑफ दिस, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, सिर्फ इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं सिंपली. सो इट विल बी लाइक दिस. Like this. Okay, here hydrogen, hydrogen, and these two are lone pair. यहाँ रिपल्शन होगी LP LP, यहाँ रिपल्शन होगी LP BP, यहाँ पे भी कौन सी होगी LP BP, और यहाँ पे कौन सी थी BP BP, जिसकी वजह से एंगल कितना रह गया. द एंगल हेयर विल बी 104 डिग्री एंड द ज्योमेट्री इज नोन एज V शेप. ओके, द ज्योमेट्री इज नोन एज V शेप. इसको निगलेक्ट कर दो तो ये V ही बन रहा है. ठीक है, सो ज्योमेट्री को B बोल देते हैं, V शेप. और मोस्टली जो वर्ड यूज़ किया जाता है हेयर दैट इज बेंट शेप. स्पेशली हम बेंट शेप वर्ड यूज़ करते हैं, V शेप भी बहुत कम, बेंट शेप. ठीक है, सो दिस इज अबाउट वाटर. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, दैट इज़ रिगार्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो मैं यहाँ से क्या समझाना चाहती हूँ आपको, दैट इवन मतलब यहाँ से हमें केमिस्ट्री भी क्या समझा रही है, दैट कि वट वी आर एज्यूमिंग, वट इन एक्चुअल कि हमें लगता है कि सबके सब कोवलेंट बॉन्ड होंगे. नो, देयर कुड बी अ लोन पेयर ऑल्सो. वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. एंड एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री से ज्योमेट्री डिफरेंट हो सकती है, एंगल डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, सो दैट्स वाई वी हैव डिस्कस द एग्जाम्पल्स. दिस इज इन एक्चुअल अमोनिया इज प्रेजेंट. ऐसे वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन हमने कभी, जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं था और आपने कभी इसको सोचा भी नहीं होगा कि वाटर इज हैविंग दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री, और मतलब वाटर का ये एक मॉलिक्यूल है, तो आप सोचो वाटर के सारे मॉलिक्यूल दे आर हैविंग, all are having this type of geometry. Isn't it interesting? I think so you might find the interest in this. Okay, so this is about sp3 hybridization. Thank you very much बच्चे. होप सो यू हैव अंडरस्टूड. अभी मेरा इसी में हाइब्रिडाइजेशन में अभी हम बात करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि कार्बन जो है वो डिफरेंट तरह की मतलब प्रॉपर्टीज़ शो करता है. ठीक है, कार्बन जो है वो sp3 भी शो कर सकता है, sp2 भी और sp भी. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कार्बन कैसे. ठीक है, तो उसके लिए मैं 3 एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू वेरी मच.